Praise the Lord. What a great joy. Once again, God has given this wonderful opportunity to be in the presence of the Lord. In this morning, as we are going to begin our service, let us close our eyes and look to the Lord in prayer. In this morning, may God let His presence fill our homes as we are going to worship the Lord together. Let's close our eyes and look to the Lord in prayer. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो अवसर प्रभु तूने हमें दिया है। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में एक साथ परमेश्वर अपने अपने घरों में बैठकर आराधना कर सके। परमेश्वर, आज हम पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे हृदय की गहराई के साथ प्रभु तुझे आराधना करना चाहते हैं। Holy Spirit, we want to welcome you into this online service, Father God. We pray that, Lord, every person, those who are going to join us in this online service, Father, I pray, Lord, in their homes to be transformed into a Bethel in the name of Jesus. Hallelujah. Let their homes be transformed into Bethel. प्रभु जी, अपने अपने घरों प्रभु जी बदल होने के लिए दे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति प्रभु उसके घर में उंडेलने दे परमेश्वर। हालेलुया। जब हम एक साथ आराधना करते हैं, Lord, this is our prayer, this is our desire, Lord Jesus. Hallelujah. Let our homes and our hearts and our city and our nation be, hallelujah, place where, Lord, they can enjoy your presence, Lord. Hallelujah. Father, we thank you. We pray for each and every one, those who are going to join us in this online service. We welcome them, Father God. Oh, hallelujah. Let them experience your presence through the songs, through the worship, through the psalms, through the word. Hallelujah. प्रभु, hallelujah, तू हमसे बात करे, तू हमारे हृदयों से, hallelujah, बातचीत करे परमेश्वर। तेरी उपस्थिति से हमें भर दे प्रभु, तेरी अनुग्रह से तू हमें भर दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु, कोई भी आज शारीरिक तौर से कमजोरी में है प्रभु तू उसको आपका बल दे परमेश्वर और आपका चंगाई उसके जीवन में दे परमेश्वर। हालेलुया। तेरी प्यार से तू हमें भरिए परमेश्वर। अब तक यहोवा ने सहायता किया है, अब तक यहोवा ने संभाला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। हृदय की गहराई से प्रभु आज हालेलुया कुछ समय प्रभु हम आपकी उपस्थिति में एक साथ आराधना के लिए तैयार होते हैं। प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे दिलों को, मनों को तैयार करे। Let your presence prepare our hearts and our minds as we are joining together in online service, Father God. Lord, we pray, Lord, let the presence of the Lord take complete control of this service. Hallelujah. From the beginning till the end, Holy Spirit, you control us. In this morning, we want to hear your voice. We want to experience your presence. In Jesus' most precious name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. What a great joy. Together, once again, we are in the presence of the Lord. You know, as usual, आप जानते हैं government ने अनुमति दिया है गैदरिंग के लिए, but we are not doing it. There are a lot of restrictions. इसके कारण हम लोग एक साथ शामिल नहीं हो पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर ने ऐसे एक सुविधा हमें दिया है ताकि हम परमेश्वर की हालेलुया उपस्थिति को कहीं पर भी हम महसूस कर सकते हैं। The word says that 2 or 3 gather in my name, my presence is there. Hallelujah. परमेश्वर ने वायदा किया है। We are going to sing some songs and worship the Lord as we are joining together. Hallelujah. On maybe through your phone or your laptop or through TV, whatever medium that you are watching us and joining us the service. Let the Holy Spirit speak to your heart. Let the Holy Spirit minister to you. Hallelujah. Let us have a wonderful time together in the presence of the Lord. मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग सेफ सलामत हैं, प्रभु आपके साथ हैं। Let us together enjoy the presence of the Lord. Praise the Lord. Once again, God has given this beautiful morning to worship the Lord together. Let us sing this beautiful chorus and worship our living God. As our children is going to sing this song, let us together enjoy the presence of the Lord and remember His promise and His faithfulness in our life. Within
Father, we are under your wings. Hide us, Lord, in all the circumstances that we go through. Lord, you are promised that you will never leave us nor forsake us. And we believe in your promise. Thank you, Father, for the comfort. And thank you, Lord, for the peace and your covering and your protection in each one of our life. We worship you, Jesus. Hallelujah. छुपा तुझे अपने पंखों में, छुपा तुझे तेरे सामर्थ्य हाथों में। आंधी तूफान मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? यीशु तू मेरा राजा है, मैं नहीं लूं तू साथ मेरे। आंधी तूफान मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? यीशु तू मेरा राजा है, मैं नहीं लूं तू साथ मेरे। तू हमें छुपा तेरी पंखों तले परमेश्वर, छुपा प्रभु तेरी सामर्थ्य हाथों से। आंधी तूफान आए जिंदगी पर प्रभु जी, विभिन्न तरीका का परेशानी पर मुसीबत हमारे जीवन में आ सके, लेकिन प्रभु तेरी पंखों तले तू हमें छुपाए परमेश्वर। तू हमारा राजा है, तू हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु तुझे भरोसा कर कर हर दिन आगे बढ़ने में प्रभु हमें सहायता कर परमेश्वर। प्रभु जी तेरी शक्ति से, तेरी सामर्थ से तू हमें भर दे परमेश्वर। आंधी तूफान जिंदगी पर आए प्रभु जी, बीमारी आए, रोग कष्ट नष्ट रोग आए परमेश्वर, लेकिन तेरे हाथ कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। तू हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आराधना और स्तुति करते हैं। तेरे समान कोई नहीं है यीशु राजा। We give all glory and honor to you. Thank you, Jesus. तूफान मेरी जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं? यीशु तू मेरा राजा है, मैं नहीं लूं तू साथ मेरे। When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King, your word the flood, and I will be still and know your love. I will be still and know you, God. Amen. What a blessed song that God has given to us. Hallelujah. It's a blessed time of worship. परमेश्वर ने हालेलुया एक अच्छा अवसर दिया है हम लोग मिलकर आराधना कर सके। अभी हम लोग भजन संगीता पढ़ने के लिए जा रहे हैं। We are going to the Psalms. Let us open our Bibles. Hallelujah. As we are going to read the Psalm, Sister Sabina is going to come and share the Psalm with us. Let us together, wherever we are, open our Bibles and read the Psalm together, and let us blessed by this word.
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। एक बार फिर प्रभु ने हमको ये अवसर दिया कि हम सब साथ मिलकर उसके जीवित वचन में मनन कर सकते हैं। सो आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता 91, साम 91। और ये वो भजन है जो कि हम इस विशेष समय में, कोरोना वायरस के समय में देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस भजन में लिखी हुई जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको क्लेम कर रहे हैं। लेकिन आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि क्या ये भजन हर व्यक्ति के लिए है या ये कुछ विशेष लोगों के लिए ही दिया गया है। सो हम आइए हम लोग देखें इस भजन को, भजन संहिता 91। और वहां पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर का वचन, जब इसी भजन को हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, साम 91 का, और उसका खास रीति से KJV ट्रांसलेशन जो है वो एक बड़ी ही सुंदर तरीके से अपने आप को व्यक्त करता है। और वहां पर लिखा है ही हु। NIV जो है वो ये बोलता है whosoever, अर्थात ये भजन हर एक उस व्यक्ति के लिए हो सकता है। हर एक किस व्यक्ति के लिए? लिखा है who dwells in the secret place, जो रहता है ना। मेहमानों के लिए नहीं है, विजिटर्स के लिए नहीं है, जो कि जरूरत पड़ने पर आते हैं हमसे मिलने के लिए, हमारे से मुलाकात करने के लिए, या जब कभी उनकी कोई आवश्यकता होती है उस समय वो आते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो निवास करते हैं, जो ड्वेल करते हैं। और जब हम निवास की बात करते हैं, ड्वेलिंग की बात करते हैं, तो हमें एक बात समझना है, ये वही व्यक्ति हो सकता है जो कि घर का सदस्य हो। निवास करने का अधिकार मेहमानों को नहीं होता है। ये संभव है कि वो थोड़े दिन के लिए आकर चले जाएं, लेकिन जो परिवार का सदस्य है वो ही निवास कर सकता है। सो सबसे पहली बात हमको समझना है, ये भजन संहिता उन व्यक्तियों के लिए सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की बात करती है जो अपने आप में परमेश्वर के घराने के लोग हैं। और हम कब परमेश्वर के घराने के बन जाते हैं? जब हमने अपने पापों से पश्चाताप किया है और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। तब यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद के अनुसार हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया जाता है। तो सबसे पहली बात हमारे सामने प्रश्न ये है कि ये सारी प्रतिज्ञाएं हर किसी के लिए हो सकती हैं, लेकिन हर किसी उस व्यक्ति के लिए जो सबसे पहले परमेश्वर के घराने का है। और जब वो उसके घराने का है या उसकी संतान है, तो वो उसके साथ निवास करता है, उसको निवास करने का अधिकार है। दूसरी खास बात हमको यहाँ पर देखना है, ये भी संभव है कि हो सकता है कोई दास भी हमारे घर में निवास कर रहा, लेकिन बाइबल यहाँ पर एक बात बताती है, इंग्लिश वाला जो ट्रांसलेशन है KJV, उसमें लिखा है इन द सीक्रेट प्लेसेस ऑफ द मोस्ट हाई। सीक्रेट प्लेसेस कौन हो सकती है? हर एक निवास स्थान का या हर एक घर में कुछ गुप्त स्थान होते हैं। गुप्त स्थान का मतलब है वहां पर हर एक को आने जाने का अधिकार नहीं होता है, केवल खास लोग ही अंदर जा सकते हैं। और वो जगह होती है जहां पर कि हम अपनी बहुमूल्य चीजों को रखते हैं। सो अगर हम केवल दास का संबंध रखते हैं, ध्यान रखें, दास का काम क्या होता है? सेवा करना, परंतु उसको पुत्र का अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, हो सकता है हम कुछ आत्मिक गतिविधियां करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, और उससे हम ये समझने लग जाते हैं कि हम
परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल हमें बताती है कि उसकी संतान होने के लिए हमें पश्चाताप करके उसको अपने जीवन का अधिकार सौंपना है। हम सेवा करने या कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने के द्वारा भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। सो दूसरी बात हम लोग देखेंगे, गुप्त स्थान कौन से हैं? बाइबल हमें बताती है गुप्त स्थान वो स्थान है जहां पर परमेश्वर का डेरा है। यदि हम उस तंबू के विषय में अध्ययन करें, उस टेबरनेकल के विषय में अध्ययन करें जो मूसा ने यहोवा के लिए बनाया था, उसके 3 मुख्य स्थान थे। सबसे पहला बाहरी हिस्सा, जिसे आउटर पार्ट कहते थे, वो स्थान होता था जहां पर लोग आकर बलिदान चढ़ाते थे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, और फिर वो बलिदान चढ़ाकर चले जाते थे। फिर वो पाप करते थे और फिर वो वापस आते थे और बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन वो परमेश्वर के साथ बहुत निकट संबंध रखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। दूसरा हिस्सा था जहां पर कि हम लोग देखते हैं याजक जा सकते थे, जहां पर रोटी की मेज होती थी, द टेबल ऑफ द ब्रेड, और साथ साथ जहां पर हम लोग देखते हैं दीवट रखी जाती थी, जहां पर निरंतर दीप जलता रहता था। सो ये वो स्थान था जहां परमेश्वर की वर्शिप की जाती थी। बाइबल में रोटी किसको दिखाया जाता है? परमेश्वर के वचन को समझाया जाता है, और साथ साथ जो दीवट है वो अपने आप में पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाती है। ये दूसरा स्थान भी हो सकता है जहां हम अपने आप को कन्फाइन किए हैं या अपने आप को सीमित किए हैं परमेश्वर की आराधना, स्तुति और वचन सुनने तक ही। लेकिन परम प्रधान स्थान जो होता था, परम पवित्र स्थान, वो अपने आप में एक गुप्त स्थान होता था, और उसमें सबको जाने का अधिकार नहीं होता था, केवल उन व्यक्तियों को जिन्होंने जो परमेश्वर का महायाजक होता था, और वो वर्ष में केवल एक बार जाता था, और वो जो अहद का संदूक था, या जिसे हम द कवनेंट बॉक्स कहते थे, उसमें हम लोग पाते हैं कवनेंट बॉक्स में मर्सी सीट होती थी परमेश्वर की, दया की याचना के लिए जाते थे। लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के कारण से वो पर्दा जो है, जो अपने आप में गुप्त स्थान का, परम पवित्र स्थान का पर्दा जो था, वो ऊपर से नीचे तक फट गया था। और इसीलिए अगर हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में जाएंगे और उसके 4 अध्याय में और उसके 16 पद को देखेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। सो तीसरी बात, क्या हम अति गुप्त स्थान में, परम पवित्र स्थान में, जहां परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, उसमें जाने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है? सो प्रभु का वचन हमें बताता है ये 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। हर एक वो व्यक्ति जो कि अपने आप में निवास स्थान में निवास करना चाहता है, और किसके निवास स्थान में लिखा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, द मोस्ट हाई गॉड। हमें समझना है, क्या हमें परमेश्वर की जो मोस्ट हाई है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी महानता को हम समझ पाते हैं। यदि हमने उसे अपने महिम के रूप में, अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया हुआ है, हम उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं और हम उसके साथ निवास करते हैं, साथ साथ हम जो है वो गुप्त स्थान में परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हैं, उसकी प्रेजेंस या उसकी उपस्थिति को खोज रहे हैं, तो बाइबल हमें बताती है ये भजन की जो विभिन्न प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारे लिए है। तब दूसरा पद कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है
वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। सो बाइबल हमें दूसरी बात बताती है, क्या वो मेरा शरण स्थान है। हम या तो केवल ये कहते हैं कि शरण स्थान है, परंतु क्या हम इस बात का अंगीकार करते हैं वो मेरा परमेश्वर है, और यदि वो मेरा परमेश्वर है तब वो शरण स्थान है और तब वो हमारा गढ़ भी है। और अगर हमारे ये अंगीकार हैं तो हमको इस बात को समझना है कि अपने आप में सुरक्षा की प्रतिज्ञा, बहेलिए इसके जाल से बचने की प्रतिज्ञा, सारी आवश्यकताओं को पूरा होने की प्रतिज्ञा, महिमा प्रदान करने की प्रतिज्ञा, दीर्घायु की प्रतिज्ञा और साथ साथ महामारियों से बचने की प्रतिज्ञा, ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। Hallelujah, hallelujah. What a beautiful psalm it is. Hallelujah, Psalm 91. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें अच्छा एक भजन संगीता दिया है। आइए हम लोग एक और गीत गाकर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना जा रहे हैं। Let us together enjoy the presence of the Lord. Let us together rejoice in the presence of the Lord. As we are going to sing this song, let us together worship the Lord. And I believe, मैं विश्वास करता हूँ जब ये गीत हम लोग एक साथ गाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घरों में भरेगा, हमारे शरीरों में हम लोग महसूस कर पाएगा, परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर हमें चंगा करेगा। Hallelujah. Let us together worship the Lord. God's presence is in our midst. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you, Lord. I worship you. I worship you, Lord. You are here, Moving in our midst. I worship you. Lord. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here, Healing every heart. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. Yes, Lord. I worship you. I worship you, Lord. I worship you. I worship you, Lord. You are here. Oh, mending every heart. I worship you. I worship you. You are Waymaker, You are waymaker, miracle worker, promise light in the keeper, darkness. light in the My darkness. God, that is who That is you who are. you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, God
That is who you are. We worship you, Lord. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is who Waymaker, you miracle worker, promise That is who keeper, you light in the darkness. are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. That is El Shaddai, El Rai, That is Rapha, who you are. Jehovah Jireh, That is Jehovah who Rapha, you are. Rabba Shetheri. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh yes, Lord, that is you are. Worship you, Lord. Oh yes, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop. You never stop. Never stop working. You never stop working. Never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop. You never stop working. Never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh yeah. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, Rabba Shetheri. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh Jesus, we worship you, we praise your holy name. That is who you are. Oh, in this morning, Father, every chain be broken in the name of Jesus. Every sickness be healed. You are our Lord. You are Jehovah Rapha. You are Jehovah Shammah, our provider. In the name of Jesus, we praise you. You are. तू यहाँ चलो फिर रहा तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ चलो फिर रहा तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ कार्य कर रहा तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ चलो फिर रहा तेरी स्तुति करूं स्तुति करूं तू यहाँ कार्य कर रहा तेरी स्तुति करूं स्तुति करूं और तू रावण का चमत्कार करता
अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वायदा निभाता, अंधेरा हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और चमत्कार करता, वायदा निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू चमत्कार करता, वायदा निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। चमत्कार करता, वायदा निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। खुदा खुदा मेरा। Oh yes Lord, we worship you. Oh you are खुदा मेरा, खुदा तू 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 मेरा। और तू चमत्कार करता, वायदा निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। Yes Lord, you are, yes। कुछ ना के पर तू कर रहा, ना समझ पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। कुछ ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझ पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझ पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझ पर कार्य तू कर रहा। कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। Miracle work, promise keeping, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, रावणाचा चमत्कार करता, वायदा निभाता, अंधेरा हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। That is who we are, that is who we are। मेरा खुदा है,
now this is the time that we are going to hear from God's word. Let us prepare our hearts to listen God's word. Today, God's word, Sister Tinu is going to share with us. Let us prepare our heart and be ready to hear from God's word. May God bless you. Praise the Lord. I greet you all in the name of Jesus Christ. जय मसीह की और मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करती हूँ। It's such a wonderful time to be in the presence of the Lord. और ये बहुत ही अद्भुत समय है परमेश्वर की उपस्थिति में होना। It's so exciting to know that God is doing marvelous works in our life. All glory and honor to God. और ये बहुत ही उत्साह की बात है ये जानना कि परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत कामों को कर रहे हैं। Galatians 5:25 says, और गलातियों 5:25 कहता है, Since we live in spirit, let us keep in step with the spirit. और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। If we live in Christ, He gives us a triumphant life. और यदि हम मसीह के साथ जीते हैं तो वो एक हमें अच्छा जीवन देता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Let's turn our Bible to the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 to 18. और इफिसियों 6 उसका 10 से 18 तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और 10 से 11। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। It's 6:10 to 18. Have you read? 6:10 to 18. Yeah. कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की इस झिलम को पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले चलो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Amen. Hallelujah. The armor of God we can see in Ephesians 6, chapter 6, verses 10 to 18. और परमेश्वर के हथियार हम इफिसियों 6 उसके 10 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक आयत में हम देख सकते हैं। Here we can see we have to be ready for battle. We need to be properly clothed. और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें तैयार रहना है युद्ध के लिए। अच्छे तरीके से हमें उस हथियार को कवच को पहने रहना है। Amen. The passage begins by informing us to be strong in the Lord and in the power of His might. और ये पद जब शुरू होता है तो इसकी शुरुआत में ये हमें बताता है कि यीशु मसीह में दृढ़ रहें, उसके सामर्थ्य में हम बने रहें। How do we accomplish this? हम कैसे इसको हासिल कर सकते हैं? The next verse instructs us to put on the whole armor of God. और दूसरी आयत हमको बताती है कि हम परमेश्वर के पूरे हथियार को पहन लें। Here we can see the battle is in the spiritual realm. और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो युद्ध है ये आत्मिक क्षेत्र का है। It is not against flesh and blood. It is a spiritual battle of proportion. ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये एक आत्मिक युद्ध है। Who are we? हम कौन हैं? We are the ambassadors of God. और हम लोग मसीह यीशु के सम्राट हैं। We are soldiers in God's army. हम परमेश्वर की सेना में युद्ध करने वाले सैनिक हैं। So our ultimate enemy on the opposing side is Satan. तो दूसरी तरफ जो हमारा शत्रु है वो शैतान है। And under his command all are territorial spirits. और उसकी आज्ञा में ही हर अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग आत्माएं काम करती हैं। To deal with these spirits and with these attack, we need a divine power. और इन हाकिमों से लड़ने के लिए, इन हमलों से बचने के लिए हमको एक दैवीय शक्ति चाहिए।
2 Corinthians 10:4 says we need divine power to demolish strongholds. और दूसरा कुरिन्थियों उसका 10:4 कहता है कि हमें शैतान के दृढ़ घर को गिराने के लिए परमेश्वर की ओर से दिव्य सामर्थ्य चाहिए। That is why we are putting the whole armor of God. और इस वजह से हम परमेश्वर के इस कवच को, इस हथियार को बांध लेते हैं। It is important to wear the armor of God in our lives every day. और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जीवन में हर दिन परमेश्वर के इस हथियार को बांध लें, Because we all know that we are standing in a battlefield. क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोग इस युद्ध भूमि पर खड़े हैं। At the same time, we have to understand that we are not alone. Our Jesus is with us each and every day, each and every moment, standing in midst of our problems. और इसके साथ हमें ये नहीं भूलना है कि हमारी परेशानियों के बीच में हर दिन यीशु मसीह हमारी परेशानियों के बीच में हमारे साथ खड़े हुए हैं। You have to realize that it is not Satan who is picking people off in the battle. आपको इस बात को समझना है कि वो शैतान नहीं है जो लोगों को उस युद्ध में खींच ले जाता है, But as low-level foot soldiers who press the battles against us always and taking unprepared and unarmed Christians. लेकिन वो शैतान के सैनिक होते हैं जो हम पर इस प्रकार के युद्ध के हमलों को करते हैं, और वो मसीह जो तैयार नहीं है, जो हथियार नहीं बांधे हुए हैं, उन पर हमला करते हैं। He always keep his eye on Christians, those who are unprepared and unarmed. वो हमेशा उन मसीहों पर अपनी नजरों को डालते हैं जो कि तैयार नहीं है और जो हथियार को नहीं लिए हुए हैं। So that is why it is important to wear the whole armor of God. और इस वजह से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लें। Now it's time to rise and battle back and take the things what devil has taken from us. और अब समय है उठने का और वापस युद्ध करने का, और जो शत्रु ने हमसे चीजों को ले लिया है उसको वापस हासिल करें। So let us prepare ourselves in this morning to understand and how to wear the weapon in this Christian life. और आइए हम अपने आप को आज की सुबह तैयार करें, इस बात को समझे कि कैसे उस हथियार को हम अपने मसीह जीवन में बांध सकते हैं। I told you it is a warfare, मैंने आपको बताया ये एक युद्ध है, but we are not alone in this warfare. लेकिन इस युद्ध में हम अकेले नहीं हैं। Hallelujah. That is the hope that we have in this earth. और यही वो आशा है जो हमारे पास इस पृथ्वी पे है। The first piece is the belt of truth that we have to wear in this warfare. और पहला जो चीज है, जो हथियार है, वो है सत्य की पटुका जो हमको इस युद्ध में सबसे पहले बांधना है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Putting on God's truth means living out His word, living on His word. और सत्य के पटुका को बांधने का मतलब ये है कि उसके वचन के अनुसार हम जिए। Being honest and sincere in our faith, what God has kept in us. वो विश्वास जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसमें हम ईमानदार वफादार बने रहे। It refers to Christian character and integrity. It is a lifestyle of Christian as a child of God. ये हमारे मसीह चरित्र को, स्वभाव को, हमारी खराई को, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे मसीह जीवन का, दिखाता है। Amen. Hallelujah. It is one of the faithfulness, I can say, it is one of the biggest quality a Christian child of God needs in the life. और विश्वास योग्यता एक सबसे बड़ा गुण होता है जो कि परमेश्वर की एक संतान का है। Every day we have to pray, Father, help us to walk in a godly standard in every areas of our life. It is very important in our lives. हमें हर दिन अपने जीवन में ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मैं अपने जीवन में आपके स्तर के अनुसार चल सकूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में। Paul tells us then to put on the breastplate of righteousness. The second thing, the second weapon that we have to, the second armor that we have to use is the righteousness. That is called the breastplate of righteousness. और जो दूसरी चीज पौलुस हमको बताते हैं जो कि बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, वो है धार्मिकता का झिलम जो हमको पहन लेना है। The purpose of breastplate is to guard the most vital organs of our body. और जो धार्मिकता की झिलम है, उसका उद्देश्य ये है कि अपने जीवन का जो सबसे हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होता है, उसको हम लोग सुरक्षित रखें। Dear church, righteousness is the first gift of God that was given to us through the cross of Calvary. और प्रिय कलीसिया,
धार्मिकता वो एक ऐसा वरदान है जो परमेश्वर के द्वारा हमको दिया गया है। Amen. Hallelujah. We are saved by Christ. और हम लोग संत हैं, हम लोग मसीह समान हैं। Where our sins are covered by the blood and God sees us as righteous. और जहां पर हमारे लहू को, हमारे पापों को उसके लहू के द्वारा धो दिया गया और अपनी संतान परमेश्वर ने हमको बनाया It is और the अपनी first धार्मिकता दी। condition. It is the first condition of the heart which controls the course of our lives. और ये हमारे हृदय की पहली स्थिति होती है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। When we put on the breastplate of righteousness, we acknowledge our need to remain free from sin. We have to remember that we have to remain free from sin always when we wear righteousness in our life. और जब हम धार्मिकता को अपने जीवन में पहनते हैं तो ये सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो धार्मिकता का चिलम हमारे जीवन में बना रहे, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परमेश्वर की धार्मिकता को हमें अपने जीवन से दिखाना है। Hallelujah. Amen. The first point I already told, the faithfulness, and the second one is righteousness. These two are the biggest quality we need in our lives. और पहला बिंदु मैंने बताया विश्वास योग्यता और दूसरा है धार्मिकता। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन के, जिसको हमें अपने जीवन में लेके चलना है। Amen. Hallelujah. After the breastplate, Paul says to shod your feet with the preparation of the gospel of peace. और झिलम के बाद हम देखते हैं, धार्मिकता के झिलम के बाद पौलुस कहते हैं कि हम अपने पैरों में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लें। In the Gospels, we can see that we are already prepared to see the difficulties or face the difficulties or face the battle in our life. और हम सुसमाचार में पहले ही देखते हैं कि हम तैयार हैं कि उस कठिनाइयों को अपने जीवन में हमें देखना होगा, उसके लिए हम तैयार रहें और परेशानियों को भी हम देखने के लिए तैयार रहें। The gospel will help us to fight the battles. लेकिन वो सुसमाचार हमारी सहायता करेगा कि उस युद्ध को हम लड़ सके। The word of God gives us the stability for sure footing. परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सही कदम रखने के लिए स्थिरता देता है, allowing us the ability to march over the territory of life without giving up. और वो हमें इस योग बनाता है, हमें काबिलियत देता है कि जो शत्रु की जो सीमा है उसको फांद के हम विजय के साथ चल सके। Let's read Isaiah 52:7. और यशाया 52 का 7 हम पढ़ेंगे। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। Hallelujah, hallelujah. We are prepared to share the gospel of peace at any time. और हम तैयार हैं कि उस शांति के सुसमाचार को किसी भी वक्त हम लोग प्रचार कर सकें। We are to have a missionary seal, being open to the Holy Spirit, leading in specific situation and all situations. We have to be open to the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा के प्रति खुला रहना चाहिए कि हमको अवसर दे, उसकी अगुवाई में हम सही रीति से चल सके। That is why Zechariah 4:6 says, "Not by might, nor by power, but by my spirit, say the Lord of hosts." और इसी वजह से वचन बताता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। Hallelujah, amen. It is because of the Holy Spirit. It is only with the Holy Spirit or through the Holy Spirit we can win the battle in this world. और ये केवल परमेश्वर के आत्मा के ही द्वारा है कि हम इस संसार के युद्ध को जीत सकते हैं। In addition to that, Paul states, "Take up the shield of faith, which you will be able to extinguish all the flaming missiles of the evil ones in your lives." और उसके साथ पौलुस कहते हैं, और इन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। Amen. Hallelujah. Church, we have to, when we take the Great Commission seriously and go on the offense, the devil may fight back with the flaming arrows. और कलीसिया, हमें इस बात को जानना है कि जब उस महान आयोग को हम अपने जीवन में लेके जाते हैं, तो वो जो शत्रु है वो हम पर जलते हुए तीर के साथ हमला करेगा। He may attack us and everything associated with us. और वो हम पे हमला करेगा और जो चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं उस पर भी हमला करेगा।
And our shield against these attacks is faith. We have to use the shield of faith to attack these things back. और उसके हमलों को रोकने के लिए जो ढाल है वो हमारे विश्वास की ढाल है जिसका हमें प्रयोग करना है. Along with that, we have to use the faith in God and और in His उसके ability to protect us, having confidence in His words. परमेश्वर पर ये विश्वास करना है कि वो काबिल है, वो योग्य है कि हमें बचा सकता है और उसके वचन के अनुसार हमें उस पे भरोसा करना है. Amen. Hallelujah. Most of us who have never been discovered how to fight the evil one back. कई हम में से ऐसे हैं जो अभी तक इस तरीके को नहीं जान पाए कि हमें उस शत्रु से वापस कैसे लड़ें. We have depended on our own moral strength, ethical wisdom, or idols and a personal commitment to justice and righteousness. और हम अपनी खुद की काबिलियत पर, अपनी बुद्धि पर, कुछ लोगों को जिनसे हम देख के सीखते हैं, उनके तौर तरीकों पर निर्भर कर जाते हैं. And some of us have faced evil in a naked encounter without being clothed in the armor of God. It's so dangerous. और कई बार इतना खतरा होता है कि हम लोग का आमना सामना भी जब उन शत्रुओं से हो जाता है और हमें नहीं पता होता है कि कैसे लड़ना है. And we had won some battles. We had escaped from some kind of temptations. We had overcome some sins. But ultimately we were found lacking somewhere. और कई बार हम लोग ने अभिलाषाओं का सामना तो किया, कई बार कई कठिनाइयों का सामना तो किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त जीत जाएंगे यदि हम इस विश्वास में उसको ढाल बना के ना चले. In these situations, we needed Christ in our lives. ऐसी परिस्थिति में हमें मसीह चाहिए खुद में. Christ will help us to stand and battles with us for us in every onslaughts of sin in our lives. मसीह हमारी सहायता करेगा कि हम हर जीवन के क्षेत्र में वो हमारे साथ रहे, हम उसके साथ, वो हमारे साथ खड़ा रहेगा और हमारी सहायता करेगा. We need a trustful obedience. Actually, we need a shield of faith. It is possible only through obedience. और ये हमारी सहायता करता है वो ढाल होने में कि हम सुन सके, बेहतर तरीके से हम लड़ सके. Our uttered commitment and dependency on Christ daily in our life. हमारा पूरा निर्भर जो है वो केवल और केवल हर दिन के जीवन में मसीह पर ही करना चाहिए. And not only that, don't forget to wear the helmet of salvation in our life. It is the most important weapon that we have to use in our life. और केवल इतना ही नहीं, हमें पूरी रीति से हमें विश्वास के, हमें उद्धार के टोप को पहनना है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है. If we take the helmet of salvation, we are safe. और यदि हम उद्धार के मुकुट को पहन लेते हैं तो हम सुरक्षित रहेंगे. Not only in the sense of deliverance, केवल छुटकारे में ही नहीं, but at the time of conflict and suffering also. लेकिन उस विद्रोह और कठिन समय में भी. We are safely from the destructive power of the Satan and all the plans and the plots of Satan when we wear the helmet of salvation. और हम जब उद्धार के उस टोप को पहने रहते हैं तो शैतान के सभी हमलों से भी हम सुरक्षित रहने पाएंगे. Hallelujah. Salvation is the strength to overcome, even conquer present and future sins. और उद्धार हमको सामर्थ्य देता है कि हम जीत सके, हावी हो सके और जो परिस्थितियां भविष्य में आने वाली है उस पर भी विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है. While we wearing the helmet of salvations, we are getting the confidence. What is that confidence? Confidence that nothing can separate us from the love of God. और जब हम उस उद्धार के टोप को पहनते हैं तो वो हमको एक हियाव देता है, एक विश्वास देता है, एक भरोसा देता है. क्या वो हियाव है? वो ये है कि कुछ भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता. So if God is for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? Paul says, take up the sword of spirit. पौलुस कहता है आत्मा की तलवार को उठा लो. Just read Hebrews 4:12. और इब्रानी 4:12 हम पढ़ेंगे. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ को
गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Amen. Hallelujah. The word of God, it is quick and powerful. It is sharper than any sword, a two-edged sword. It is very sharp, the sword of spirit. It is the word of God. और जो आत्मा की तलवार है वो परमेश्वर का वचन है, जो कि दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। The sword of the Spirit can be the words of discernment spoken in the power of the Holy Spirit. और वो जो आत्मा के तलवार होते हैं वो परख के वो वचन हो सकते हैं जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा बोले गए। When Holy Spirit is guiding us in the midst of the problems, we will never see failures because He is always helping us to move in the right path. He is always helping us to put the right step in the midst of each and every troubles. और जब हम पवित्र आत्मा के वचन के अनुसार चलते हैं तो हम किसी भी तरीके से असफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारी हर परेशानी, हर कठिनाइयों के बीच में वो हमारे साथ है, वो हमारी सही दिशा में अगुवाई कर रहा है। Amen. Hallelujah. No doubt, the sword of Spirit must glorify the living word, Jesus Christ, through you and me when we use the sword of Spirit in our lives. और इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है कि जब हम आत्मा की तलवार को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो आपके और मेरे द्वारा यीशु मसीह को हमारे जीवन से महिमा मिलती है। The another weapon Paul mentioned, it is one of the important, praying in the Spirit always. और एक और जो हथियार है महत्वपूर्ण जो पौलुस यहाँ पर बताते हैं वो है हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करते रहना। We have to be filled with the knowledge of God and the spirit of discernment. और हमें परमेश्वर के ज्ञान और परख के आत्मा से भरे रहना है। The word of God is the key to destroy the satanic plans, purpose, plots and everything what he is planning in the unseen realm. और परमेश्वर का वचन है वो कुंजी है उस बात की कि वो शैतान की सारी ताकतों को, हमलों को और जो भी चीजें अनदेखे क्षेत्र की, आत्मिक क्षेत्र की है, उसको रोक सके। We can break the strongholds of Satan in our lives when we use the word of God in the situations. जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थितियों में लागू करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हर प्रकार के बंधन को, दृढ़ गढ़ को शैतान के हम तोड़ सकते हैं। Hallelujah, hallelujah. I mean, I know that we are believing that we have a faith that Satan is under our feet and the glorious Lord is reigning. He is insisting. He is inside our hearts. The glorious power of the Holy Spirit is inside our heart. So Satan cannot do or Satan cannot touch us in any ways. और हम इस बात को जानते हैं, विश्वास भी करते हैं कि शैतान का सर हमारे पैरों के नीचे है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। किसी भी रीति से वो शैतान हम पर प्रबल ना होने पाएगा, क्योंकि जब वो हम में है, उसका सामर्थ हम में है, तो उसके द्वारा हम उसके सर को कुचलेंगे। He may plan things again. He may try to attack us, but God says, without my word or without my plan, no one can touch you in this world. और शैतान शत्रु हमारे विरुद्ध में योजनाएं बना सकता है, वो जाल भी बिछा सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरी अनुमति के बिना कोई तुमको हानि ना पहुंचा सकता। Dear brothers and sisters, I told you faithfulness and righteousness is the biggest quality that we have to keep in our lives. प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता और धार्मिकता सबसे बड़े गुण हैं जो हमें अपने जीवन में रखने हैं। Along with that, clear conscience and pure heart will lead to the deep relationship with the Lord and the Holy Spirit. और उसके साथ हमें एक शुद्ध विवेक और शुद्ध हृदय चाहिए जो परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में हमारे हमें होने में सहायता करता है। That is why Galatians 5:25 says, since we live in spirit, let us keep in step with the Spirit. और इस वजह से गलातियों 5:25 कहता है कि जब हम आत्मा से जीवित हुए हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। When you are obeying God, you are letting God to work through you and work for you. इसलिए जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो आप में और आपके साथ काम कर सके। Battle is there. I'm not telling there is no battle in our lives. Yes, there is battle. But God said, do not fear. Do not fear. और युद्ध है, ऐसा नहीं है कि युद्ध हमारे जीवन से हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहते हैं डरो मत। He is beyond our imagination. He is beyond our thoughts. He is beyond our thinkings. What to say? I don't know. It is beyond our imagination and it's beyond everything. Our God is beyond everything in this world. और वो हमारी सोच के परे है, हमारी कल्पना के परे है,
और जो कुछ भी हम सोचते हैं वो उस सब के परे है। He can do things beyond your situations. We are trying to solve matters in our own ways, our own strength, but God is telling, Holy Spirit is telling, I am above than your thoughts. I can do things what you people, what I and you, we have never thought in our imaginations. और वो हर चीज के परे है। वो आपकी सहायता, आपकी परिस्थिति की सहायता आपकी सोच के परे से कर सकता है। हो सकता है आप कोशिश करते हो अपनी परिस्थितियों का समाधान खुद निकालने की, लेकिन वो Hallelujah. उससे बढ़कर आपकी सहायता कर सकता है, क्योंकि उसका वचन बताता है कि उसके विचार हमारे विचार से बहुत अलग है और हम उसके विचारों की, उसके तरीकों की कल्पना भी नहीं कर सकते। That is why Isaiah 59:1 says, the arm of the Lord is not too short to save you from the battle and from the problems that you are going through. और यशाया उसका 59 का 1 कहता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके। I know that I'm speaking to some of the families, you, those who are watching me. Holy Spirit is telling very clearly, my arm is not too short to save you from the problems. If you believe, you can see a creative miracles in midst of the problems and the battle you are going through right now. Hallelujah. और मैं जानती हूँ कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, जितने लोग आप लोग मुझे देख रहे, पवित्र आत्मा बताता है कि कोई परमेश्वर आपसे कहता है कि उसका हाथ छोटा नहीं कि वो आपको बचा ना सके। आपकी जो परेशानी हो, जो समस्या हो, जो युद्ध में आप हो, वो आपको उसमें से छुड़ाएगा। The problems that we are seeing in this world, the battles what we are going through is temporarily. It is not going to be for so long. That is what God says. What you are seeing is temporary, and what you are unseen is eternal. और हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी परिस्थिति, जो भी युद्ध आपके सामने चल रही है, वो हमेशा की नहीं है, केवल कुछ समय की है। और यही परमेश्वर का वचन भी बताता है, जो देखी चीज है वो तो कुछ समय की है, लेकिन जो अनदेखी चीज है वो अनंत काल की है। Don't take decision as what you like. और जो आप पसंद करते हैं आप वही निर्णय ना ले लें। Rely on Holy Spirit and keep step in each and every move in your life. That is what Galatians 5:25 says. It is connected to Ephesians 6. That is why I'm connecting this verse to Ephesians 6:10-18. Because without the help of the Holy Spirit, if we wear the armor of God, without the guidance of the Holy Spirit, we cannot fight any battles. We know that our God will fight battle for us, but we have to under the complete guidance of the Holy Spirit in our lives. और हम अपनी इच्छा से ना चले, जो पसंद आता है वो ना करे, पवित्र आत्मा के अनुसार चले, उसकी अगुवाई में चले। इसी वजह से गलातियों उसके 5:25 में लिखा है, जब आत्मा से जलाए गए तो तुम उसके अनुसार चलो। और इसी वजह से गलातियों 5:25 को मैं इफिसियों 6 उसके 10 से 18 तक जोड़ती हूँ, क्योंकि जब तक हम आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, हम उस परमेश्वर के हथियार को हम कैसे बांध सकते हैं, और यदि हम उस हथियार को ना बांधें तो हम युद्ध कैसे करेंगे? जबकि परमेश्वर हमारे साथ है युद्ध करने के लिए, वो हमारे लिए लड़ रहा है, लेकिन हमें उस हथियार को बांधे रहने की जरूरत है। So walk in spirit always, live in spirit always. तो हर वक्त आप आत्मा में चलें और आत्मा में जिए। We are the dispenser of the glory of God. God wants his children to be champions in everywhere in this world. So definitely Holy Spirit is always with us, and definitely God is with us. If we are not seen but the unseen realm, when we are praying, Holy Spirit is working on the unseen realm. God is making arrangements for us to win in the unseen realms that we are not seeing. But when we are praying faithfully and we have that faith that definitely my God will do things, definitely we can see the champion. We will be the champions, and we can see the victory of the Lord in our lives. और हम वो लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से दिखाते हैं। हम वो विजयी लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके जितने संतान हैं, हम लोग विजयी रहे, और हमें उसको उसकी जो इच्छा हमारे जीवन से कि हम विजय रहे, उसको पूरा करना है। उस हथियार को बांध के हम विजय होने की हम पूरा हो सकते हैं। Don't forget, always be clothed with the armor of God. और आप बिल्कुल ना भूलिए कि हर वक्त आप हथियार को परमेश्वर के बांधे रहें। Holy Spirit will guide you completely in your life. Holy Spirit will guide you completely in your life.
और पवित्र आत्मा आपको पूरी रीति से आपके जीवन में अगुवाई करेगा। When you are in doubt, I don't know what's your situation is, but Holy Spirit is telling, nothing to worry. I am with you. Do not fear. You have battles, but you will see right now that you are win the battle. You won the battle because Holy Spirit is saying, I am there. If I am there, who can stand against you? और पवित्र आत्मा कहता है तुम भयभीत ना हो, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे युद्ध में हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं इस युद्ध में तो कौन तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। Amen. Hallelujah. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है तुझ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में भी सांस मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाला कल में भी होगा। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों में बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया। Hallelujah. Let's pray for as we are moving forward. Let us pray for our nation. Pray for कानपुर सिटी. हालेलुया. आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें. परमेश्वर हम मिलकर प्रार्थना करते हैं. कानपुर शहर के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं. We pray for Kanpur city, Lord. Lord, many people are getting infected by this COVID-19, Lord, coronavirus. Father, we pray that, Lord, in the midst of this pandemic, Father, you give your grace, Lord. Hallelujah. We pray that, Lord, you cover our people under the blood of Jesus. Lord, you are Jehovah Rapha. You are our protector. Lord, you are in our midst, Lord Jesus. Hallelujah. We pray
We cover each and every family of our church in the hands of the Lord. Father, when they go out, when they come in, Father, you cover them, Father God. Lord, give them good health. Provide all their needs, Holy Spirit. All their spiritual, emotional, and physical needs, Father God. Lord, you fulfill through your presence, through your hallelujah, oh, through your heavenly provisions, Father God. We pray, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितना लोग प्रभु शारीरिक तौर से कमजोर है, यीशु नासरी के नाम से हम लोग विश्वास से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी कोई भी शारीरिक कमजोरी से है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त जब हमारे प्रार्थना को सुनते हैं, उसको छुए, पवित्र आत्मा उंडेले परमेश्वर। हालेलुया। ओ यू आर वंडरफुल, यू आर ए हेवनली फादर। ओ प्रभु कोई कार्य तेरे लिए कठिन नहीं है परमेश्वर, कोई कार्य तेरे लिए असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है परमेश्वर। आज हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, हर एक जरूरतों को पूरा करे परमेश्वर, इसकी जरूरतों को पूरा करे परमेश्वर। ओ राबा शेतेरिया मनगदना रिखबा शांतरे, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करे प्रभु जी। उसके परिवार को मैं आशीर्वाद करता हूं परमेश्वर। कोई भी पारिवारिक समस्या से कोई भी फैमिली गुजर रहा है, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हालेलुया, तू उसको सहायता करे, रहम कर परमेश्वर। तेरी दया से भर दे, तेरी उपस्थिति से भरे प्रभु जी। हर एक कंफ्यूजन की स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, लेट इट गो आउट इन द नेम ऑफ जीसस फादर। वी टुगेदर प्रे फादर गॉड, ओ राबा शेतुरुरिया मनगदना, ओ लॉर्ड वी प्रे फॉर a hallelujah an extension in their lives father god, extension father god in every areas father lord, every limitations be cancelled in the name of jesus परमेश्वर। हर एक हालेलुया कमजोरियां, शैतान की चालें यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पाप से प्रभु उसको आजाद करे परमेश्वर, शैतान की बंधन से लोगों को आजाद करे in the mighty name of jesus lord। You are Jehovah Rapha, you are Jehovah Nissi, you are hallelujah almighty god। प्रभु कोई भी कार्य तेरे लिए कठिन नहीं है परमेश्वर। हालेलुया हम लोग बहुत बार निराश हो जाते हैं प्रभु जी, हालेलुया अविश्वास करते हैं परमेश्वर, लेकिन आज दिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ओ एवरी डिस्करेजमेंट, एवरी स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट इन द नेम ऑफ जीसस वी कैंसल इट फादर गॉड। ओ राबा बाबा शेतुरुरिया मना, तेरा बल से भर दे प्रभु, तेरी अनुग्रह से भर दे, तेरी हालेलुया शक्ति से भर दे प्रभु। हमारे शहर को तू छुए, हमारे शहर को तू छुए, हमारे राज्य को तू छुए, हमारे नेशन को तू छुए। Heal our nation, touch our nation. Hallelujah, Lord, help us in the midst of this epidemic, Father God, this pandemic, Lord Jesus, we pray. Lord, hallelujah, nations are, Lord, hallelujah, don't know what to do, Father God. They are crying in for help, Father God. Many people have gone from this earth, Father. Lord, we pray, have mercy on the people, have mercy on them, Father God. Lord Jesus, hallelujah, prepare us, Father God. Prepare the church, prepare the families, Father God, to pray and intercede for the nations. प्रभु हमें सहायता करे परमेश्वर। ओ राबा शेतुरुरिया मना, प्रभु जी हालेलुया हम लोग फिजिकल तौर से एक साथ आराधना नहीं कर पाए तो भी परमेश्वर हमारे परिवार के हर एक परिवारों को, हमारे कलीसियाओं को, प्रभु की दासों को प्रभु तेरी हाथों में सौंपते हैं। ओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ओ राबा शामदर, we bless them in the name of Father, Son and Holy Spirit. Let them be a great blessing, Father God, in the mighty name of Jesus. O rabba shetururia mana, Lord, hallelujah. Let Father God, let us together work for the extension of your kingdom. प्रभु जी ये सुंदर अवसर है परमेश्वर, प्रभु जी तेरी सुसमाचार प्रभु दूसरों को बांटने के लिए, प्रभु तेरा शांति जो दुनिया नहीं से दे सकते हैं, the world cannot give, Father God, the peace that you promise. Father, we pray in the mighty name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, any bondages in the name of Jesus. If anyone, those who are listening to me, Father, oh today in this morning is going through any kind of bondages, in the mighty name of Jesus, send your word and heal them and deliver them and break that bondage, Father God. Break the yokes in the name of Jesus. Let us walk together with God. Let us be abide in Christ Jesus. Let us walk closer to Holy Spirit. Father, help us. Give us a heart to be with you, Lord. Give us a heart to, oh hallelujah, Lord, to hear your voice. Give us a heart to, Father God, hallelujah, to love each other. Give us a heart to love others, our neighbors, our enemies, Father God. Lord, we pray for the persecuted churches. Lord, even in the midst of this pandemic, many churches in India
India are going through, hallelujah, very difficult time, Lord. We pray in the name of Jesus, have mercy on them, Father. We pray for our nation, bless our nation, bless India, Lord, hallelujah. We pray for all the, hallelujah, government officials. We pray for the Prime Minister, President, Chief Minister, all the cabinet members, everyone, Lord, we bless them in the name of Jesus. We pray for the police and we pray for, hallelujah, the law and order, Father. Oh, hallelujah, the officers, Father. We pray for the medical officers. We pray for the medical students, medical doctors, nurses, and all those who works with the health department in the name of Jesus. Have mercy on them, protect them, Father. Oh, Lord, Rabba this time we pray for Jessie, Lord. Heal her, Father God. Hallelujah. Thank you for all the healing that you have given to her, Father. Strengthen her, Father. Bless her, Father God. Oh, give your grace, Father. Hallelujah. Thank you for your strength upon her, Father God. Oh, Rabba thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु जी, हमें नहीं मालूम है प्रभु कब हम मिलेगा, फिर से हम कब प्रभु आराधना के लिए एक साथ आ पाएगा। प्रभु जी, जब तक प्रभु हालेलुया आप अवसर ना दे, प्रभु जी आप पंगो तले, oh hallelujah, help us to be hide under the wings of the Lord. Lord Jesus, bless us together, Lord. Cover us, Lord. Hallelujah. We give all glory and honor to you, Father. Thank you for this wonderful time that you have given to us to worship you together, Father God. Give all glory and honor to you, Father. Guide us, Holy Spirit. Strengthen us, Holy Spirit. Why bless the people in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Be with them, Father. In Jesus' most precious name we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah. I believe that this day was a great blessing in your life. Continuously remain in the presence of the Lord. We are praying for you. Hallelujah. Kindly avoid going here and there. This is spreading very badly in these days. मैं कृपया ये आमंत्रण देना चाहता हूँ, ये बहुत वाइडली स्प्रेड हो रहा है। कृपया प्लीज बी सेफ। हालेलुया। जब आप बाहर जाते हैं अपने आप को सुरक्षित रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल अंटिल वी मीट अगेन। परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष और उपस्थिति आपके साथ बने रहे। Hallelujah. I want to tell you benediction. Let us receive the benediction. Hallelujah. If you have any prayer requests, kindly send to us. Let us know. We are praying for you. Thank you so much for all your support and praying, and continuously pray for us. Hallelujah. And God bless you all. May the grace of the Lord and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us. Help us, Father God, to grow more in the Lord. Help us to, Father God, to be a blessing for others until my Jesus comes again and the church may say Amen, Amen, Amen. May God bless you. Thank you so much. Hallelujah. Maranatha.